Hello everyone, welcome back. Actually, in this video, I am going to discuss about essential work from home reimbursement. How you can claim all 18,000 rupees without wasting a single rupees. Actually, before starting this video, I got some valuable feedback that please make video in English medium. Yes, it's good that if I make video in English medium, my audience should be understand everything very clearly. But actually, if I start delivering video in English medium, I'm not be able to deliver all the things 100%. So for I know it's a very difficult for my audience to understand, but if you have any doubt in Hindi, anything, in my each and every video, I am saying that if you have any doubt, please reach out to me on Instagram. Actually, if you watch this video very carefully, you will be able to claim all your 18,000 rupees. Actually, maximum employee have remaining balance 292 rupees, 400 rupees in their balance. But if they watch this video, they will be able to claim all amount. Actually, before proceeding, and I will tell every step. First, I have some common questions. So this common question will also help your to clearing all doubt. The questions I will answer all the common questions, then I will explain the process. First question is, can I purchase in offline mode? So yes, you can purchase in online mode, offline mode, any mode, but the invoice should must be invoice number, that is serial number, invoice date, seller name, and seller name must be GST registered. Product name should be explained. Net amount, GST amount, and final amount must be in the invoice. So you can purchase from anywhere. Now, second question is, can I purchase anything? No, you cannot purchase anything. There is a list of items. You have to be purchased items from the list only. So all the work from home related items are available in that list. So you have to be purchased only from that list. That it does not mean that you can purchase anything. Third means things, how to upload and only invoice is enough. So only invoice is not enough. It must be required payment proof. That means if you purchase any mouse, so you need to that invoice of mouse, and you also need a payment proof of mouse. That means how if you pay the amount through Amazon Pay, Google Pay, any mode, you need to screenshot. That means, and also you can pay through card, but do not pay through cash, because to upload the bill to claim the 18,000 rupees, the online payment proof is required. Can I next question? Can I purchase single product two times? No, you cannot purchase single product two times. That means you cannot purchase 6,000 of chair टू टाइम्स. दैट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि आप चेयर ही दो खरीद लो 12,000 रुपये का. ऐसा नहीं हो सकता, एक प्रोडक्ट ही खरीदना है. ज्वाइनिंग डेट, हाँ, एक बहुत सारा ये क्वेश्चन आता है कि मेरा ज्वाइनिंग डेट था 16 सितंबर का, लेकिन मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि अगस्त का प्रोडक्ट है, क्या मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ? तो नहीं, उसी प्रोडक्ट को क्लेम करना है जिसका बिलिंग डेट आपके ज्वाइनिंग डेट के बाद का हो, या ज्वाइनिंग डेट का दिन का भी हो तो चलेगा. और एक बहुत सारा कॉमन, क्या क्या हेडफोन खरीद सकते हैं? एक्चुअली ये जो हेडफोन है ना, ये कंपनी नहीं दिया है, तो लोग डाउट में रहते हैं क्या हेडफोन खरीद सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी देता है. तो देखो लिस्ट में वहाँ पे कुछ ईयर हेडफोन है, तो आप हेडफोन बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लेट्स एक समझते हैं एग्जाम्पल से, कि आपको आपके अकाउंट 17,000 का अपने खरीदारी कर चुका है, 1,000 रुपीज आपके अकाउंट में बचा है. अब क्या करें? आपको मान लो कि आपको एक कीबोर्ड खरीदना है जिसका प्राइस है 1,200 रुपीज, तो क्या आप खरीद सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं. आप 1,200 का कीबोर्ड खरीद लीजिए, उसको जैसे आप बाकियों को अपलोड किए उसको भी वैसे ही अपलोड कर दीजिए पोर्टल पे. कितना अमाउंट दे, तो टोटल जितना जो जो इनवॉइस में लिखा हो सब कुछ इनवॉइस में एकदम एग्जैक्टली सब कुछ अपलोड कर दीजिए. आप ये भूल जाइए कि आपके अकाउंट में कितना पैसा बाकी है, आपका कितने का सामान है, भूल के उसको बिल्कुल अपलोड कर दीजिए. तो अब क्या होता है कि जब आप अपलोड कर दोगे तो आपके अकाउंट में 1,000 रुपीज होगा, तो 1,000 ही चला आएगा, 200 रिजेक्ट हो जाएगा. और ये रिजेक्शन कमेंट क्या होगा उसका कि रेस्ट्रिक्टेड टू योर मैक्सिमम लिमिट. मेरे साथ भी था, मेरे अकाउंट में ना 23 रुपीज बच गया था, तो मैंने क्या किया, बस इसी को देखने के लिए ये माउस पैड 99 रुपीज का मैंने ऑर्डर कर दिया था.
ऑर्डर कर दिया और मैंने पूरा इसका 99 रुपीज़ लिख के सब कुछ डिटेल उटेल भर दिया। और जो शिपिंग डिटेल है वो भी डाल दीजिएगा, मतलब शिपिंग चार्ज होता है उसको भी उसी में ऐड कर दीजिएगा। हो गया। तो आप बिल्कुल वो 18,000 रुपीज़ क्लेम कर लीजिए। और कुछ डेट कुछ बता दें आपको कि जो पोर्टल होता है जिसपे आपको बिल और पेमेंट प्रूफ अपलोड करना होता है, वो हर महीने के 1 से 12 तारीख, मतलब 1 से 12 तारीख के बीच में आप कभी भी अपना इनवॉइस और पेमेंट प्रूफ और सारे डिटेल के साथ में ऐड कर सकते हैं, कभी भी 1 से 12 तक के बीच में। और जो इसका पेमेंट कब होगा, वो अगले महीने के 5 तारीख को पैसा आ जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, दो जो भी आप इनवॉइस लें वो इनवॉइस आपके नाम पे होना चाहिए। लिखा रहता है, क्लियरली मेंशन रहता है, द बिल सबमिटेड शुड बी इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड शुड कंटेन जीएसटी डिटेल्स ऑफ द सेलर वेंडर, जो कि मैंने पहले बताया। और देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत लोग का डाउट होता है कि रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे होगा। तो ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। देखिए, please ensure that you enter correct bill number, bill dates, that is category, product, etc mentioned in the bill while updating the details in the booking page. Claims with incorrect, incomplete supporting information will be rejected. रिजेक्ट, तो अब इसका सोल्यूशन भी दिया है। क्लेम्स रिजेक्टेड ड्यू टू इन्फॉर्मेशन मिसमैच मे बी क्लेम्ड अगेन इन द नेक्स्ट साइकिल। अगर कोई भी आपका आइटम्स है जो कि रिजेक्ट हो जाता है तो कोई वरी की बात नहीं है, नेक्स्ट साइकिल में आप उसको फिर से अपलोड कर दीजिए, उसके नेक्स्ट में उसका पेमेंट आ जाएगा, हो गया। देखो, एसेंचर को पैसा देना है तभी तो आपको सब कुछ के लिए डिटेल भेजा, हर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस बात के लिए बिल्कुल नहीं वरी होना है कि क्या मेरा पेमेंट नहीं आएगा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस दैट्स इट। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, भारद्वाज अमित _। थैंक यू गाइज एंड प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर अपडेट।